welcome back to Abhigyan Academy. In today's session, we will be talking about a very important concept from physics. Okay? And as we know, physics is a very high weightage topic in both ND and serious examinations, from where you get at least 8 to 12 questions every year. ND mein to you get some more than that also sometimes. Okay? So let's start. The topic we'll discuss today is thrust and pressure. Okay? We'll talk about pressure. So let's see what is pressure. Before that, let's understand what is thrust. Okay? So what is thrust? We know what is force. Okay? A force is a kind of any kind of a push or a pull. That is a force. Okay? And the formula for force we get it from Newton's second law, which is F equal to ma, force equal to mass into acceleration. Okay? Now what is thrust? See, when you apply a force, say this is a force and this is a surface. If I apply the force on this surface at an angle of 90 degree, okay, the angle between the force and the surface is 90 degree. If the force is basically perpendicular to the surface, then such a force is known as thrust. Whenever the force is acting perpendicular at 90 degrees with the surface, उस time हम force को thrust बोलते हैं. ठीक है? Now coming to what is pressure. See, pressure is nothing but जब भी हम किसी सरफेस पे थ्रस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पूरे एरिया में से, ये देखिए अब मैं इसमें थ्रस्ट डाल रहा हूं तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है फोर्स डालने के लिए. ठीक है, तो जो पूरा एरिया पे थ्रस्ट पड़ रहा है, उस पूरे एरिया में से पर यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट पड़ेगा, ठीक है, मतलब पर मीटर स्क्वायर जितना थ्रस्ट अप्लाई होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया. नाउ थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हिच इज न्यूटन. फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड एरिया इज एरिया मीटर स्क्वायर. तो हम प्रेशर का यूनिट चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बट द यूनिट दैट वी यूज, द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर, इज कॉल्ड पास्कल, व्हिच इज रिटन एज पीए, पी कैपिटल पी स्मॉल ए. ठीक है. नाउ if we look here, if we look here carefully, look at the equation. Pressure equal to thrust by area, right? Now if you look at the fraction, this is a fraction. Okay, if you look at the fraction here, in denominator we have area. Okay, we have area in the denominator. तो अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचे, if we look at this equation from the point of view of the basic laws of mathematics, then what do we understand? We understand the fact that whenever in a fraction the denominator increases, the whole fraction decreases in value. अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू में छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एरिया है, तो अगर एरिया बढ़ेगा, then the denominator of this fraction, this equation will increase and the whole fraction's value is the pressure. ठीक है, then the pressure will decrease. What do we understand is that pressure is inversely proportional to area in some way. If the area is large, the pressure is less, and if the area is small, the pressure is more, it is larger. अभी इसका एक explanation मैं आपको देता हूं before moving on to pressure in fluids. The explanation is that कि अगर आप देखोगे, आप जब घर में सब्जी काटते हो, you use a knife to cut the fruits and vegetables. Knife जब blunt होता है तो उस टाइम सब्जी ढंग से कट नहीं पाता, बट जब भी नाइफ शार्प होता है, धार होता है उसमें, तो इजीली सब्जी कट जाता है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि जब भी ब्लंट नाइफ होता है ना, ब्लंट नाइफ के जो एजेस होते हैं, ब्लंट नाइफ के एजेस का सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है. ब्लंट होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जब आप काटते हो तो आप नाइफ से प्रेशर डाल रहे हो. एंड व्हाट डिड वी लर्न कि अगर प्रेशर ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. ब्लंट नाइफ के एजेस का एरिया ज्यादा होता है, तो ब्लंट नाइफ से प्रेशर कम पड़ता है और सब्जियां ढंग से कट नहीं पाती.
बट इफ वी यूज अ शार्पर नाइफ, इन अ शार्प नाइफ एकदम धार होगा, एकदम चिकना सा धार होगा एकदम, ठीक है, एंड द एजेस विल बी एक्सट्रीमली स्लिम, ठीक है, एकदम पतला एज होगा नाइफ का। उससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट प्रेशर विल इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होते ही क्या होगा, जैसे आप सब्जी काटोगे सब्जी एकदम इजीली कट जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे कि एक सॉलिड से मैं दूसरे सॉलिड पे प्रेशर डाल, फ्लूइड्स में प्रेशर कैसा होता है, देखो, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स हम समझते हैं इन आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट एनी फ्लूइड मींस अ लिक्विड, इन आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें ये लगता है कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है, बट दैट इज नॉट द केस। ऐसी कोई भी चीज जो अपना शेप अपने कंटेनर के हिसाब से बदल ले, उसको फ्लूइड बोला जाता है। कि मैंने किसी चीज को एक कंटेनर में डाला तो उसने उसी कंटेनर का शेप ले लिया, ऐसे सब्सटेंस को फ्लूइड बोला जाता है। एंड ऐसा बस लिक्विड ही नहीं है, इवन गैस हैज द प्रॉपर्टी। आप गैस को किसी भी एक कंटेनर में डाल दो, वो गैस आपको दिखेगा तो नहीं, बट गैस उसी कंटेनर के शेप में आ जाएगा। दैट इज व्हाई बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। एंड जस्ट लाइक सॉलिड्स exert pressure on others, fluids, that is liquids and gas, they also exert pressure just like solid, ठीक है। बट अब डिफरेंस ये है कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड एक ही डायरेक्शन में प्रेशर दे सकता है, सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसे मैं इससे प्रेशर दे रहा हूं, बस इधर ही प्रेशर आ रहा है, आजू बाजू प्रेशर नहीं दे रहा है। बट फ्लूइड का क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर में फ्लूइड को भर दिया, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड हर डायरेक्शन में प्रेशर देगा, क्योंकि फ्लूइड क्या है, वो फैलना चाहता है, वो हर दिशा में फैलना चाहता है, तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर देगा। और फ्लूइड में कैसा होता है, आप जितना डेप्थ में जाओगे, मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड के आप जितने सरफेस पे रहोगे, प्रेशर उतना कम होगा, और आप जितना डेप्थ में जाओगे, जितना गहरा जाओगे पानी में, पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब यही कारण है वाई जब हम डैम्स बनाते हैं, जब हम डैम्स बनाते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है, द डैम्स विच आर बिल्ट ऑन द रिवर्स, the dams are not on the surface, right? A very huge part of the dam is also present deep inside the water, है ना? तो पानी के डेप्थ में डैम का जो हिस्सा होता है, वो काफी मोटा होता है ऊपर के हिस्से से। क्यों? क्योंकि पानी के नीचे के हिस्से में, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द डेप्थ, पानी का फ्लूइड प्रेशर बहुत हाई होता है, और अगर वहां पे डैम पतला बना तो डैम टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। दैट इज वाई एट द डेप्थ ऑफ रिवर्स, जो डीपर पार्ट होता है डैम का एट द बॉटम, इट इज ऑलवेज मेड थिकर देन द पार्ट विच इज ऑन द सर्फेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग नोन एज बुएंसी। व्हाट इज बुएंसी? ठीक है, मान लो मैंने पानी लिया विच इज अ फ्लूइड, और मैंने एक बॉल लिया, और उस बॉल को मैंने पानी में डुबा दिया, और फिर मैं उसको छोड़ दूं बॉल को, क्या होगा, वो बॉल थोड़ी देर बाद वापस ऊपर सरफेस में आके फ्लोट करने लगेगा। एक्चुअली हुआ क्या, व्हेन आई सबमर्ज्ड एन ऑब्जेक्ट इनटू द फ्लूइड, सबमर्ज मतलब जब मैंने उसको डुबाया अंदर, तो फ्लूइड ने नीचे से ऊपर की तरफ धक्का मारा उसको, और वो ऊपर आ गया। तो व्हाट वाज इट? इट वाज एन अपवर्ड फोर्स, इट वाज एन अपवर्ड फोर्स जिसने उसको ऊपर सरफेस पे भेज दिया वापस। तो व्हाट इज बुएंसी? बुएंसी इज नथिंग बट द अपवर्ड फोर्स which is exerted by a fluid on any object which is submerged into it, ठीक है। अब यही कारण है कि चीजें पानी में लाइट फील होती है। आपका बॉडी आप नोटिस करोगे, इफ यू आर इनटू स्विमिंग और इफ यू आर अ स्विमर, व्हेनेवर यू विल बी इनसाइड द स्विमिंग पूल, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी थोड़ी हल्की हो गई। आपको आपका बॉडी हल्का क्यों लगता है? क्योंकि ग्रेविटी तो आपको नीचे खींच रहा है, बट एट द सेम टाइम आप जिस पानी में डुबकी लगा रहे हो, वो स्विमिंग पूल का पानी आपको बुएंसी से ऊपर पुश कर रहा है। दैट इज वाई दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती है, और आपका वेट पानी के अंदर कम लगने लगता है। और बुएंसी का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंडेंट होता है? फ्लूइड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, उस फ्लूइड का बुएंट फोर्स या बुएंसी भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा। व्हाट इज वेट?
We studied in gravitation. If you see in my earlier videos, you'll notice what is weight. Weight is nothing but the force by which earth is trying to pull us towards its center. ठीक है, इट्स अ फोर्स जिससे अर्थ हमें नीचे खींच रहा है अपने सेंटर की तरफ। अगर पानी जो बुएंट फोर्स ऊपर मारेगा, अगर इंसान का वेट उस बुएंट फोर्स से ज्यादा हुआ तो बुएंट फोर्स कैंसिल आउट होके आदमी नीचे डूब जाएगा। बट अगर बुएंट फोर्स चीज के वेट से ज्यादा होता है तो क्या होगा, बुएंट फोर्स जाके उस वेट को कैंसिल आउट कर देगा और वो सामान वापस सरफेस पे आके फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। इफ द बुएंट फोर्स इज मोर देन द वेट, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इफ द वेट इज मोर देन द बुएंट फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल सबमर्ज, इट विल ड्राउन। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने उसको फ्लूइड में डाला, उस फ्लूइड का एक डेंसिटी होगा और उस ऑब्जेक्ट का भी एक डेंसिटी होगा। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस चीज को तुमने डुबाया अंदर, उसका डेंसिटी अगर फ्लूइड के डेंसिटी से कम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम फ्लूइड में डुबाओगे, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर फ्लूइड के डेंसिटी से इक्वल हुआ या फिर फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा हुआ तो फिर वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, नाउ we have something known as the Archimedes principle. Yeah, we have something known as the Archimedes principle. Archimedes was a Greek philosopher, a Greek scientist. He discovered something. What happened is that एक दिन Archimedes बाथटब में घुसा नहाने के लिए। इट्स अ फनी स्टोरी। तो आर्किमिडीज जब बाथटब में घुसा नहाने के लिए तो उसका बाथटब एकदम ऊपर तक भरा हुआ था। ठीक है, एकदम फिल्ड अप बाथटब था उसका। वो उसमें नहाने के लिए बैठ गया और जैसे ही आर्किमिडीज बाथटब के अंदर गया, पानी जो है ओवरफ्लो हो गया साइड से। एट दैट मोमेंट उसको सडनली स्ट्राइक हुआ और उसको रियलाइज हुआ कि उसके अंदर जाते ही ये पानी ओवरफ्लो हुआ क्यों। और खुशी के मारे उसी हालत में बिना कपड़ों के आर्किमिडीज रास्ते पे निकल गया चिल्लाते चिल्लाते, यूरेका 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 यूरेका। यूरेका इज लाइक सेइंग, यू नो, लाइक कि हो गया, कर दिया मैंने, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो व्हाट डिड आर्किमिडीज एक्चुअली डिस्कवर? आर्किमिडीज ने यह डिस्कवर किया है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को मैंने एक फ्लूइड में इमर्स किया। इमर्स किया मतलब मैंने डुबा दिया उसको। ठीक है, अब क्या होगा? वी हैव स्टडीड अबाउट बुएंसी, वी हैव स्टडीड अबाउट बुएंसी, वी हैव स्टडीड अबाउट बुएंट फोर्स, है ना? वी हैव स्टडीड अबाउट बुएंसी एंड बुएंट फोर्स। व्हाट? कि जब भी कोई चीज फ्लूइड में डुबाया जाता है तो बुएंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, बुएंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, इट्स एन अपवर्ड फोर्स। तो ही सेड कि देखो, अब जब भी तुम किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करोगे, उस बॉडी को एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बुएंट फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कितना बुएंट फोर्स एक्सपीरियंस होगा? वो वैल्यू ऐसे मिलता है कि जब भी आप किसी बॉडी को फ्लूइड में इमर्स करते हो तो इमर्स करने के बाद जो थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ आके डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, उस पानी का जितना वेट होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने एक सामान लिया, उसको पानी के अंदर डुबाया। ठीक है, पानी के अंदर जैसे ही मैंने डुबाया तो थोड़ा पानी ऐसे ऊपर की तरफ आकर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो जो डिस्प्लेस किया हुआ पानी है, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो भी वेट होगा, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट व्हिच द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस। मतलब अपवर्ड फोर्स जितना मिलेगा ना इसको इस केस में, वो फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट of that amount of water or fluid which was displaced because the object was immersed inside. ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज कहां कहां होता है? शिप्स और सबमरीन बनाने के लिए होता है,
गोल्ड का प्योरिटी मेजर करने के लिए भी होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन डिवाइसेस लाइक हाइड्रोमीटर्स एंड लैक्टोमीटर्स, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी, ठीक है, ऑफ प्रेशर एंड ऑल्सो अबाउट ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, वी ऑल नो। ग्रेविटेशन दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर तुम दुनिया में किसी भी दो बॉडीज को ले लोगे, उन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इवन मेरे और इस पेन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, बट फील क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सिंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बहुत छोटा है, तो छोटे मासेस के साथ जब उसका प्रोडक्ट होता है, देन द टोटल नंबर इज वेरी लेस। बट अगर हम अर्थ को कंसीडर करें, प्लेनेट को, या सन को कंसीडर करें, मून को कंसीडर करें, उनका मास बहुत बड़ा है। तो दैट इज वाई कैपिटल जी का वैल्यू छोटा होने से भी एंड में टोटल वैल्यू काफी ज्यादा आता है। सो देयर इट मैटर्स। हमने पढ़ा कि वेट क्या है? वेट इज नथिंग बट अ फोर्स बाय विच अर्थ इज पुलिंग अस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेट हमारा लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है। अर्थ पे हमारा वेट कुछ और होगा, मून पे हमारा वेट कुछ और होगा। अर्थ के सरफेस के पास स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी स्टडीड टुडे अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वी स्टडीड कि बुएंसी क्या होता है, फ्लोटिंग सिंकिंग कैसे होता है। हमने थ्रस्ट का डेफिनेशन पढ़ा, प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, और हमने ये जाना कि प्रेशर होता है एरिया से उल्टा रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, ठीक है। आई होप इट वाज अ यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप कि it will help you to clear the concept for your exam. Before I leave, I'll see you again in another video very soon. Tab tak, kindly keep studying in a disciplined way. Be sincere. Revise daily. Exams are pretty near. Form fill-ups are also over. The exams are in April. Do well, eat well, sleep well. I'll see you again soon in another video. Until then, goodbye, take care, and Jai Hind.